So today we'll discuss about the sickle cell anemia. Sickle cell anemia occurs due to autosomal recessive gene. Let us see how this sickle cell anemia. Suppose in a normal person, the normal gene contain CTC in template strand of DNA. In template strand of DNA, CTC is present. Why I am telling about the template strand? Because CTC of the template strand will provide codon to mRNA. So here transcription occur. During transcription, this base sequence of template strand of DNA provide codon to mRNA. That codon will be C, then here will be G, T, then here will be A, and here C, then G. The codon is GAG. Then what will be the amino acid here? GAG codon will codes the amino acid glutamic acid at 6th position. Glutamic acid will come at 6th position in beta globin chain. In the first position, what will come? In the first position comes valine, then histidine, then leucine, then threonine, then proline. So in first position valine, in second position histidine, in third position leucine, in fourth position threonine, in fifth position proline, and in sixth position glutamic acid. So if this condition is here, at 6th number glutamic acid is present, then the hemoglobin will be normal and RBC will be normal. Here RBC will be normal RBC. Normal RBC will produce. This is the CTC, provide codon to mRNA, H, GAG, then GAG codes to glutamic acid at 6th number. In the first number valine, histidine, leucine, threonine, proline, 6th number glutamic acid, normal RBC. But in recessive allele mutation occurs. That mutation is a point mutation. Sometimes NEET exam it may be also asked what is the point mutation? Mutation which occurs due to replacement of one base by other. एक बेस दूसरे बेस से रिप्लेस हो जाए तो बेस सीक्वेंस चेंज हो गया तो कोडान चेंज हो जाएगा, कोडान चेंज होगा तो एमाइनो एसिड चेंज होगा, एमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हुआ तो प्रोटीन चेंज हो गई, फिनोटाइपिक ट्रेट चेंज हो गया. तो यहाँ पे T is replaced by A. In recessive gene means mutated gene में क्या होगा? यहां पे T base T is replaced by बेस ए. टी जो था यह ए से रिप्लेस हो गया तो सीटीसी की जगह क्या हो गया? सीएसी. अब सीएसी सी एमआरएनए क्या बनेगा? एमआरएनए क्या बनेगा? सी का जी, ए का यू और सी का जी, जीयूजी. अब ये किस एमाइनो एसिड को कोड करेगा? ये कोड करेगा वैलिन को. तो 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया? वैलिन आ गया. बाकी के एमाइनो एसिड सेम. वैलिन फर्स्ट नंबर पे यहां भी है,
हिस्टीडीन सेकेंड नंबर पे यहाँ भी है, ल्यूसीन थर्ड नंबर पे यहाँ है, फिर थ्रियोनिन फोर्थ नंबर पे यहाँ है, प्रोलिन फिफ्थ नंबर पे यहाँ है। बाकी के अमाइनो एसिड सेम है, केवल चेंज क्या हुआ एट द सिक्स नंबर ग्लूटेमिक एसिड की जगह क्या आ गया, वाइलिन आ गया। और वाइलिन आने से अब यह आरबीसी कैसी हो गई, सिकल सेल आरबीसी, सिकल सेल आरबीसी। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो होगा, यह ग्लोबिन बीटा ग्लोबिन प्रोटीन इलांगेट हो जाएगा, आरबीसी भी इलांगेट हो जाएगा, सिकल सेल आरबीसी सेमी सर्कुलर हो गया। तो डिफेक्टिव आरबीसी क्यों बना, म्यूटेंट आरबीसी क्यों बना, ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। यह म्यूटेशन कैसा है, म्यूटेटेड जीन पॉइंट म्यूटेशन, टी के जगह पे ए आ गया और ए आने से जीएजी की जगह पे जीयूजी कोडान बन गया। अब जीयूजी बनने से ग्लूटेमिक एसिड की जगह वाइलिन आ गया, तो वाइलिन आ गया। अब यह जो है जब लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, देन द ग्लोबिन प्रोटीन अंडरगो इलांगेशन and RBC elongates and becomes sickle cell. It will not carry proper oxygen. तो normal person have normal gene, there will be no any problem. But the heterozygous person who have one normal allele and other sickle cell allele, defective allele, they are heterozygous. They will not much suffer. They will survive. They will live, they cannot do very hard work, but they will be carrier, they transfer this allele to next gen, defective allele to next generation. But the person who are having homozygous sickle cell allele, then they will be sufferer. So sickle cell anemia occurs due to point mutation. Point mutation occurs by replacement of base T with the base A. टी की जगह ए आ गया, देन कोडान जीएजी की जगह जीयूजी हो गया, देन एमाइनो एसिड ग्लूटेमिक एसिड की जगह वाइलिन हो गया 6 नंबर। अब इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जैसे सपोज कर लीजिए कोई हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस पर्सन है, एचबीएस एचबी ए नॉर्मल है और एचबीएस सिकल सेल हो गया। फादर कैसा है, एचबीए एचबीएस, और मदर भी हेट्रोजाइगस सपोज हो गई, एचबीए एचबीएस। अब जब इनमें गैमीटोजेनेसिस होगा तो एचबीए एचबीएस सिकल सेल और यहाँ पे एचबीए एचबीएस। अब सपोज कर दीजिए यह गैमीट इससे मिल गया तो एचबीए एचबीए, ये क्या हो गए नॉर्मल। अब सपोज ये इससे मिल गया तो क्या हो गया एचबीए एचबीएस, और ये इससे मिला तो क्या हुआ एचबीए एचबीएस, और ये इससे मिल गया तो क्या हुआ एचबीएस एचबीएस। तो यहां एचबीए दिस इज नॉर्मल, this contain normal RBC. Here HbS carrier. This is also carrier, and this HbS HbS. This is complete sickle cell. तो यह complete sickle cell हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहां पर हमने बोला एलील मीन्स टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन। तो एक जीन
एक एलील उस जीन का एक फॉर्म है HBA जो नॉर्मल है, दूसरा फॉर्म है सिकल सेल। तो ये दोनों हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस मदर भी क्या है, हेटेरोजाइगस। अब अगर दोनों हेटेरोजाइगस होंगे तभी जाके संतान कैसी होगी, कंप्लीट सिकल सेल होगी। नहीं तो एक हेटेरोजाइगस है एक नॉर्मल है तो संतान भी कोई नॉर्मल होगी कोई हेटेरोजाइगस। देखिए फादर हेटेरोजाइगस हैव HBA HBS, मदर आल्सो हेटेरोजाइगस HBA HBS। अब इनमें गैमीट कैसे बने, some sperm contain HBA and some contain HBS, means here normal allele, this is the defective allele, mutated, mother also HBA HBS, normal defective। अब अगर यह मिल जाता है यह और यह तो HBA HBA means normal RBC, here HBA HBS means carrier, HBA HBS carrier and here HBS HBS दोनों मिल गया तब that will be सिकल सेल, कंप्लीट सिकल सेल हो जाएगा, पूरा सिकल सेल डिफेक्टिव हो गया या सिकल सेल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ डिजीज ऐसे हैं जो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब एक बेस चेंज हो गया डीएनए में तो कोडान चेंज कर देगा, कोडान चेंज करेगा तो एमाइनो एसिड चेंज होगा, एमाइनो एसिड चेंज होगा तो फिनोटाइपिक ट्रेट चेंज हो जाएंगे। ये क्यों होता है, जब डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है उस समय डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इट विल डू जेनेटिक प्रूफ रीडिंग बहुत एक्यूरेसी से होती है वहाँ। अगर प्रूफ रीडिंग जिस समय हो रही अगर रॉन्ग बेस आया और वह नहीं करेक्ट किया गया वहीं रह गया तो जो डीएनए बनेगा वो डिफेक्टिव होगा, फिर वह अगली पीढ़ी में जब जाएगा गैमीट से होके तो फिर क्या होगा, वहाँ पे वह म्यूटेशन शो होगा और phenotypic trait will be changed. So this way the sickle cell anemia is the disease which occurs due to autosomal recessive allele. Thank you.